Today we are going to discuss about a poem from class 5 English NCRT Malu Balu written by Kamla Basin and it is translated by Sandhya Rao. Hello everyone, you are watching The Tutor. Let's begin with the poem. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her mane, Malu Balu was her name. Very soon our Malu Balu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small, Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky, a little patience child, said Mum. In the summer when next it comes. Summer, patience, what a test. Malu simply could not rest. Okay. See here, icy layer means a place which is covered with ice. We know that penguins and polar bears, the aquatic animals, they live on ice like penguins and polar bear they mostly live on icy place where the land is covered with snow, so that is icy layer where polar bear lives. Okay, and mane means the hair that is around the neck, that is mane. Okay, so this is a poem of little polar bear whose name is Malu Balu. Okay, this poem is of a little polar bear whose name is Malu Balu. She is a girl and she lives with her parents in icy place. She is very clever and beautiful and has white fur all over her body. She learns to catch fish and other activity and also she learns other activities from her parents. One day she said to her mother, Mom, I want to go out to play. I want to go far from this place and see how the world is, how the world look like. So what the mother replied? The mother replied, No, Malu Balu, you are so small. I can't let you go far from this place. You have to wait until you grow big. You have to wait until the summer come. Because for the summer to come, it was a long time. So her mother was saying her to wait until the summer comes. Before that, I will not let you go because you are too small. It is not safe for you to go so far. So Malu Bhalu she became upset as she did not get permission to go out. Her mother understood that Malu wants to grow fast. So what she did? She started to give her training. Now what type of training she gave that we will see in the next stanza. ठीक है, तो ये पोएट किसने लिखा, तो ये जो पोम है वो किसने लिखा है? वो लिखा है कमला भासिन ने, जिसको ट्रांसलेट किया गया है संध्या राव ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसने लिखा है? कमला भासिन ने, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? संध्या राव ने। तो ये पोयम किसका है? ये पोयम एक पोलार बेयर के बारे में है। एक छोटा सा बेयर है, पोलार बेयर, उसका नाम मालू भालू है और उसी के ऊपर ये पोम बनाया गया है। उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वो कहाँ रहती है? वो आइसी लेयर में रहती है। पोलार बेयर और पेंगुइन्स ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो लैंड में नहीं, वो स्नो में रहते हैं, आइस में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो मालू भालू है ये आइस में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया? सो उसके बारे में कैसे बताया कि उसके जो मेन है पूरे वाइट है, मतलब उसके पूरे बॉडी में वाइट फर है, वो वाइट कलर का है, पूरा टेडी बेयर जैसा दिखता है। ओके, पूरा उसके बॉडी में वाइट कलर के फर है और वो बहुत क्लेवर है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत जल्दी जल्दी सारे एक्टिविटीज़ वो सीख लेती है। जैसे फिश को कैच करना, बड़ी फिश हो या छोटी फिश हो, वो बहुत क्लेवर है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेती है। सारी एक्टिविटीज़ को अपने पेरेंट्स से वो सीख लेती है। तो एक दिन वो जो मालू भालू होती है, वो जो छोटी पोलर बेयर होती है, वो अपने मॉम से कहती है कि मुझे अब यहाँ से थोड़ा दूर जाना है, मुझे देखना है कि वर्ल्ड, ये जो बिग ब्लू स्काई है, इसके बाहर कैसा वर्ल्ड है, मुझे वो वर्ल्ड देखना है। मैं यहाँ रह रह के अभी थक गई हूँ, मुझे अभी थोड़ा बाहर का देखना है कि बाहर कैसा दिखता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुमको यहीं मेरे पास रहना है। जब तुम और बड़ी हो जाओगी, जब नेक्स्ट समर सीजन आएगा, तब तक तुम थोड़ी और मेच्योर हो जाओगी, बड़ी हो जाओगे, तब तुम जाना वहां पर। अभी थोड़ा पेशेंस रखो समर आने तक। तो मालू भालू कहती है ये कैसा टेस्ट है, मुझे इतना वेट करना पड़ेगा।
मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतना वेट करूं, मुझे अभी जाकर देखना है कि वो ब्लू स्काई के बाहर क्या है। मीन्स उसको थोड़ा दूर जाना था उस जगह से। ठीक है, इतना स्टैंजा क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे देखते हैं। First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now, my dear, you will have to swim. But, Ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Swum is the past tense of swim. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand into the water splash to land. Brave mother's brave young daughter. Doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right, but swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. See, here clasp means to hold tightly, to give a hug. You can see in the picture how that Malu Bhalu and her mother, they are closely standing and they are hugging each other. So that is clasped. Okay, and firm. Her voice was firm. Firm means very strong and clear. Okay, strong and clear. That means that is firm. And okay, so here, what is she saying? Her mother, what is she saying? She's saying to Malu, her child, to learn swimming. Hearing that, Malu got scared because she never swum before. She was too small, so she didn't swim. Uh, she did not swim before. So now she wanted to swim. Actually, her mother wanted her to swim, to learn swimming, because unless she know to swim, how can she go far away from that place? But Malu Balu, because she was too small, she was young, and she didn't swim before, she was little scared, she was frightened. But her mother gave her confidence and took along with herself. They both jumped into the water. As soon as Malu jumped into the water, all her nervousness had gone and she started to swim and enjoyed it. She enjoyed it to the fullest. Looking at her, Malu's mother understood that my daughter is not only clever and brave but also very special to me. ओके, सो अब ये सारे स्टैंजास में क्या बताया गया है कि देखो, पहले तो वो मालू बालू कहता है कि मेरे को यहाँ से दूर जाना है ना, मेरे को अभी इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वेट करूँ और नेक्स्ट समर आने तक मैं रुकूं, मुझे अभी जाकर देखना है कि वो ब्लू स्काई के बियॉन्ड क्या है। पर उसकी मम्मी कहती नहीं, पहले तुमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग क्या थी कि उसको पहले स्विमिंग सिखाना, क्योंकि वो छोटी है, उसे अभी तक स्विमिंग आती नहीं, उसने स्विमिंग किया ही नहीं। तो अब वो स्विमिंग सीखेगी। कौन सिखाएगा? उसकी मम्मा उसको सिखाएगी। तो जब उसकी मम्मा उसे कहती है कि अब तुम्हारा स्विमिंग सीखने का टाइम आया, तो वो डर जाती है क्योंकि उसने पहले कभी स्विम किया ही नहीं। तो अब उसे डर होता है कि मैं कैसे स्विम करूंगी, मैं नहीं कर सकती। पर उसकी मम्मा उसको हक करती है और उसको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि तुम मेरे साथ स्विम करो, यू होल्ड माई हैंड टाइटली, आई विल टेक यू into the water and I will make you learn, I will teach you how to swim। तो फिर वो अपने मम्मा का हाथ पकड़ के जंप कर देती है पानी में। ठीक है, और जैसे ही वो पानी में कूदती है, उसे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फटाफट स्विम करने लगती है। उसका जो डर होता है, जो जो उसका नर्वसनेस होता है, वो सब कुछ चला जाता है। वो ये भी नहीं देखती कि मैं बराबर स्विम कर रही हूँ या नहीं, उसको उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मुझे आ गया है, और वो सीख भी लेती है क्योंकि वो क्लेवर भी है ना। मालू बालू क्लेवर है, क्लेवर पोलर बेयर है, तो वो जल्दी जल्दी से स्विमिंग भी सीख लेती है। और जब उसकी स्विमिंग उसकी मामा देखती है तो वो भी खुश हो जाती है कि देखो, ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सब सीख गई है। पहले तो उसे डर होता है कि मैं डूब जाऊंगी, मुझे स्विमिंग नहीं आता, लेकिन वो अपने मम्मा के साथ जब पानी में जाती है तो वो सीख जाती है। ठीक है, और वो नेचुरली उसको वो अंदर से आता है, क्योंकि जैसे वो पानी में जाती है उसको अंदर से नेचुरली स्विमिंग आने लगता है। ये देखकर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि मेरी जो चाइल्ड है, मेरी जो मालू बालू है, वो ब्रेव है, क्लेवर है और बहुत स्पेशल भी है। ठीक है, तो ये पोएम किसके ऊपर है? मालू बालू, एक छोटी पोलार बेयर के ऊपर
जो क्लेवर है, ब्यूटीफुल है और अपने पेरेंट्स से फटाफट सारे एक्टिविटीज सीख लेती है और यहाँ तक स्विमिंग भी सीख लेती है। ठीक है, आई होप दिस पोम इज क्लियर। अब हम इसका नोट्स देखते हैं। Here few hard words are given. Layer means wild animals lying place. Mane means long hair on the neck of some animals. जो neck के पास, जो गर्दन के पास जो बाल होते हैं उसको mane बोलते हैं, जैसे lion के पास भी mane होते हैं, right? Clutch means encircle, hold closely, hold tightly. और might means great strength, पूरी ताकत के साथ। ठीक है, now first question, where did the polar bear live with her family? पोलार बेयर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती थी? आंसर, द पोलार बेयर लिव्ड विथ हर फैमिली इन एन आइसी लेयर। तो कहाँ रहती थी वो अपनी फैमिली के साथ? आइसी लेयर में रहती थी। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? अब जो मालू भालू है वो अपने पेरेंट्स से क्या सीखी? मालू भालू लर्न टू स्विम, कैच स्मॉल एंड बिग फिश फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो उसने स्विमिंग सीखा और बड़ी छोटी मच्छी को पकड़ना सीखा। वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल? मालू को कहाँ जाना था, कहाँ पर ट्रैवल करना था? मालू वॉन्टेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द ब्लू स्काई। उसे कहाँ जाना था? उसे बियॉन्ड द ब्लू स्काई, उसे ब्लू स्काई के बाहर, मतलब दूर जाना था, उस जगह से जहाँ वो रह रही है उस जगह से उसे दूर जाकर देखना था कि वहाँ की दुनिया कैसी है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था। What was it that मालू's parents wanted her to learn? अब वो क्या था जो मालू के पेरेंट्स उसे सिखाना चाहते थे? मालू's parents wanted her to learn how to swim. उसके पेरेंट्स उसे स्विमिंग सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो छोटी थी, अब तक स्विमिंग करी नहीं थी। अब उसे स्विमिंग सीखने का टाइम आ गया था, मतलब उसका टाइम आ गया था कि अब वो स्विमिंग सीखे। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स वही चाहते थे। Then was मालू scared to swim? Did she learn it easily? क्या मालू को स्विम करने से डर लगता था? क्या उसने आसानी से स्विमिंग सीखा? Answer is yes. Malu was scared to swim, but very soon she learned swimming and her fear had gone. हाँ, पहले तो उसे डर लग रहा था स्विमिंग करने में, पर जैसे ही वो स्विमिंग पूल में कूदी, जैसे ही वो पानी में कूदी, उसका सारा डर चला गया। Then next, read the last two stanzas of the poem. Whom does she stands for in both? इधर जो है ना, इधर लास्ट टू स्टैंजास जो है पोएम के, उसमें शी दो बार दिया हुआ है, तो वो शी किसको डिस्क्राइब कर रहा है वो बताना है, किसको डिनोट कर रहा है वो शी। तो फर्स्ट स्टैंजा का जो पहला शी है वो मालू को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, वो शी मालू के लिए है, और जो सेकंड स्टैंजा का शी है वो मालू के मदर के लिए है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेन, यूज अ चार्ट। इधर चार्ट दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। मालूज हेयर वॉज वाइट, मालू के जो हेयर है वो व्हाइट कलर के थे। ट्रू, यस इट वॉज वाइट। मालू न्यू हाउ टू स्विम, क्या मालू को स्विमिंग करना आता था? फॉल्स, उसको बिल्कुल नहीं आता था, उसने सीखा है। मालू वॉज प्लेइंग विद पेंगुइन्स, फॉल्स, क्योंकि पेंगुइन का तो कोई जिक्र ही नहीं है पोम में, तो फॉल्स। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, ट्रू, क्योंकि उसने सीखा कैच करना, वो बहुत जल्दी सीख गई, उसे आता था कैच करना। मालू वॉज अ ब्रेव भालू, यस शी वॉज ब्रेव, वो बहुत ब्रेव थी, स्ट्रॉन्ग थी। मालू डिड नॉट लव हर मदर, फॉल्स, वो अपनी मदर को बहुत लव करती थी। मालूस मदर वॉज फर्म, यस ट्रू, मालू की जो मदर है वो स्ट्रॉन्ग और क्लियर थी। Then now write a detailed character sketch of Malu Bhalu. See here few words are given like brave, strong, hardworking, eager to learn more, smart, caring, impatient, female, affectionate, bold, playful, white, adventurous, clever, young, fearless. So you have to make a sketch of Malu Bhalu by using these words. These are the qualities that Malu had. So you have to prepare a sketch that includes these words. One example I have wrote, you can copy down the same. Malu was a female polar bear with white fur all over her body. She was strong, hardworking, young bear. She was smart, caring and impatient, always eager to learn more. She was not only bold, clever and fearless but also adventurous, affectionate and playful. तो इसमें सारे words
ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। ठीक है, ब्रेव मतलब हिम्मत वाली, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग मेहनती थी, ईगर टू लर्न मोर मीन्स हमेशा उसको कुछ नया सीखने की एक चाहत होती थी कि मैं जल्दी जल्दी सब सीख लूँ, वो है ईगर टू लर्न मोर। स्मार्ट, वो स्मार्ट थी। केयरिंग, वो केयर भी करती थी। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मीन्स उसको कोई चीज़, उसको सब्र ही नहीं था, उसको अभी तो अभी चाहिए ऐसा। फीमेल मीन्स गर्ल, शी वॉज अ गर्ल। अफेक्शनेट मीन्स शी वॉज लविंग, शी वॉज अट्रैक्टिव। बोल्ड, वो बोल्ड भी थी, वो स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड थी। प्लेफुल भी थी, वाइट कलर की थी, एडवेंचरस भी थी। ओके, क्लेवर, यंग, फियरलेस, फियरलेस मीन्स उसको कोई डर भी नहीं था। ओके, वो निडर थी। तो ऐसा आपको एक स्केच बनाना है। Then next is, read the following passage carefully. One day, Meena plucks a mango and brings it home. Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. Meena protests. After all, she brought the mango and she is the elder of the two. She insists she has a greater right over her share. Her father comes to her help and divides the mango equally. तो ये एक पैसेज है जिसको पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए जिसको सॉल्व करना है। ओके, यू हैव टू रीड द पैसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, what the meaning is there in that passage, and few questions will be given that you have to solve. Who brought the mango home? Mango, एक्चुअली ये पैसेज को क्या बताया मालूम? वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो, एक मीना एक गर्ल है, वो एक ट्री से, मैंगो ट्री से मैंगो को तोड़ी और अपने घर पर लाई। उसकी जो ग्रैंड मदर है, नानी या फिर दादी कोई भी, वो ग्रैंड मदर जो है उस मैंगो को काटी, उसने एक एक लार्जर पीस और एक स्मॉलर पीस, उसने इक्वली नहीं काटा, उसने एक लार्जर पीस रखा और एक स्मॉलर पीस रखा। तो उसने जो लार्जर पीस है वो राजू को दे दिया क्योंकि वो एक लड़का है, इसके लिए उसको बड़ा वाला मैंगो दिया, और जो छोटा मैंगो था वो मीना को दिया। ये देखकर मीना को अच्छा नहीं लगा, उसने प्रोटेस्ट किया, मीन्स उसने ऑब्जेक्ट किया, उसने सवाल किया कि ऐसा क्यों, मैंगो तो मैं लेकर आई हूँ और मैं तो राजू से बड़ी हूँ, तो मुझे बड़ा पीस मिलना चाहिए, है ना? तो फिर ये सुन के उसके जो फादर है, मीना के फादर, वो आते हैं और वो इक्वली डिवाइड करते हैं, मीन्स 50-50 बराबर बराबर का डिवाइड करते, और एक पीस मीना को देते और आधा राजू को देते। ठीक है, तो ये पैसेज का मतलब है। अब क्वेश्चन क्या है? हु ब्रॉट द मैंगो होम? किसने मैंगो घर लाया? मीना। मीना ने तोड़कर लाया था ना, तो मीना। आपको पूरा सेंटेंस लिखना, मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है, आपको पूरा सेंटेंस लिखने का। ठीक है, मीना बॉट द मैंगो होम। वाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव अ लार्जर पीस टू राजू? मीना की जो ग्रैंड मदर है वो बड़ा पीस राजू को क्यों दी? आंसर आएगा क्योंकि राजू बॉय है, बिकॉज ही इज अ बॉय। मीनाज ग्रैंड मदर गेव लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही इज अ बॉय। ऐसा फुल सेंटेंस पे आपको लिखना है। हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस? आपको क्या लगता है किसको लार्ज बड़ा पीस मिलना चाहिए था मैंगो का? मीना को, क्योंकि वो बड़ी भी है और उसी ने तो मैंगो को तोड़कर लाया ना, तो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो, लाइक नेम, प्लेस यू लिव इन, physical feature, habits, likes and dislikes, etc. See, this part is for you. Okay, this is for you. You have to fill your personal detail here, like your name and where you live, your physical features, how you look, and what are your habits, and what you like and what you don't like. So you have to fill your detail here. Just for a format I have written, you can write like this: I am Tina. Okay, whatever your name is, you write I am Rahul, or I am Raj, I am Riya, anything. Okay, whatever your name is, you can write I am Tina, I live in Bangalore, I am tall and beautiful. ये आपका physical feature हो गया। आप short हो तो short लिखो, tall हो तो tall लिखो। ओके, आई लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, साइकिलिंग एंड आउटिंग, ये आपके हॉबीज हो गए। what you like: drawing, painting, cycling and outing. Outing means to go out. Then I don't like maths. अब आपको मैथ्स कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क यू टू डू? थिंग्स यू लाइक टू डू एंड थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू। अब यहाँ पर दो सेक्शन हैं। वन में आपको लिखना है जो आपको पसंद है, व्हाट यू लाइक टू डू, एंड अदर सेक्शन में लिखना है जो आपको नहीं पसंद है।
तो आपको क्या पसंद है? जैसे आपको वॉचिंग कार्टून्स, टीवी देखना पसंद है, कार्टून देखना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, प्लेइंग गेम्स, साइक्लिंग पसंद है, या फिर क्रिकेट खेलना पसंद है, जो भी पसंद है वो इस बॉक्स में लिखना। और जो नहीं पसंद है वो नेक्स्ट कॉलम में लिखना। जैसे कुकिंग, खाना पकाना नहीं पसंद है, डूइंग डिशेस, बर्तन मांजना नहीं पसंद है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट मेन इज, let's write. Malu lived with Malu's parents in the North Pole. Malu had great fun with Malu's seagull friends. One day, Malu's father told Malu that the hunters had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for Malu and Malu's family everywhere but in vain. See, here a short story is given of Malu itself, but here what you have to do, we can avoid repeating the names by using certain other word in their place. Yes. See here, when you read this short story, everywhere you can see Malu, 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 Malu. Means repetition is there. Malu is repeated many times, so it doesn't look nice. So you have to replace this Malu with pronoun. Actually, what is pronoun? It is from grammar. Pronoun is something that replaces. Pronoun is words like I, he, she, me, you, he, him, it, they, them. So these words are known as pronoun, which are used to replace noun. Means once when you start writing a story, you can write the name like Malu. Then after that, you can't write Malu's parents, Malu this, Malu that. You have to replace the Malu with he or her. Okay, he or her. That we will see here how to write by replacing noun. Malu lived with her parents in the North Pole. She had great fun with her seagull friends. You can see in place of Malu's parents, her parents has been used. So this her is pronoun. Okay. So wherever her and him, she, her is there, that is pronoun. But here mostly her is used because Malu is a girl and for girl we use her. Malu lived with her parents in the North Pole. She had great fun with her seagull friends. One day, her father told her that the hunters had come to trap her and her family. She knew how to hide very well. She shut her eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for her and her family everywhere, but in vain. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मालू जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ पोल पर रहती थी। कहाँ रहती थी? नॉर्थ पोल पर। और मालू बहुत मज़े करती थी अपने सीगल फ्रेंड्स के साथ। सीगल मतलब वो पानी के किनारे जो भी एनिमल्स होते हैं वो उसके फ्रेंड्स थे। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीगल फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करती थी, फन में रहती थी, अच्छा एंजॉय करती थी। पर एक दिन मालू के जो फादर हैं वो मालू से कहते हैं कि हंटर्स आने वाले, उनका शिकार करने के लिए, मालू का शिकार और उसकी फैमिली का शिकार करने आ रहे। अब मालू को पता था कि कैसे अपने आप को छुपाना है, हाइड करना है, कैसे अपने आप को छुपाना और हंटर से बचना है। तो उसने क्या किया? मालू ने अपने आँख को एकदम ऊपर की तरफ कर लिया। मालूस आई, ओके, मालू शट मालूस हर आईज एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल। उसने अपने आँख को बंद कर लिया और एक बॉल की तरफ बन गई। एक तो पहले से वो व्हाइट कलर की है और वो ऐसा गोल गोल कर्ल हो जाएगी तो वो पूरा स्नो बॉल दिखेगी, तो वो स्नो बॉल बन गई ताकि हंटर उसे पहचान न पाए। इस तरह उसने हंटर को फूल बना दिया। ठीक है। फिर हंटर आए, मालू को भी ढूंढे, उसके पेरेंट्स को ढूंढे, उसके फैमिली को ढूंढे, पर कोई मिला ही नहीं क्योंकि वो लोग छुप गए थे, एक बॉल बनकर छुप गए थे ना। फिर वो आए, ढूंढे और चले गए। वेन मीन्स वेस्ट हो गया। आए, ढूंढे, पर कुछ नहीं उनके हाथ लगा और वो चले गए हंटर्स लोग। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो पोम है और उसका जो नोट्स है वो एंड होता है। I hope you like this poem explanation and notes. If you want more such videos, then do hit the button, like and subscribe the channel. Thank you.